Today we'll discuss exercise 6.5, question number 13. D and E are points. You can see D and E are points on CA, CB respectively of triangle ABC, right angled at C. You have to prove that AE square plus BD square equal to AB square plus DE square. So first we'll write what is given to us. Then given is angle C equal to 90 degree. You may just simply write this angle C equal to 90 degree, and to show you write this AE square plus BD square equal to AB square plus DE square. So we have to write that part of the construction also. This is construction that you have join A to E, D to B and D to E. Okay, so now we write the solution. So majorly you have to take care what you have to show, that you have to show AE square. You have to find AE square. So you have to find a triangle, right angle triangle, in which you will get one side as AE. So I can see clearly that in triangle we can start with ACE, angle C equal to 90 degree. So using Pythagoras theorem I can write that AE square equal to AC square plus CE square. So this is our first information. So we can write this as using Pythagoras theorem. Of course, Pythagoras theorem you have to write. Next, you see BD triangle. BD, you can see BD is coming in this triangle DCE. So you take in triangle DCB angle C equal to 90 degree. Again using Pythagoras theorem, you are getting DB square is equal to DC square plus BC square. Mark this as equation number 1, mark this as equation number 2. So now you have to just see that what you have to do with these two equations. So simply you add 1 and 2. Then see what you get. This is AE square plus DB square is equal to AC square plus CE square plus DC square plus BC square. Now you have to see, you have to bring AB square. So AB square, AC plus BC, if I take them together, AC square plus BC square in one bracket plus rest of two terms in another bracket. This is CE square plus DC square in another bracket. Now you observe in triangle, you can write this here also, in triangle ABC angle C equal to 90 degree. So using Pythagoras theorem you can write that AC square plus BC square is equal to AB square. Similarly you take triangle CDCE, again angle C equal to 90 degree. You can apply Pythagoras theorem. So DC square plus CE square is equal to DE square. So using these information that you mentioned here, you write AC plus BC as AB square and CE plus DC square as DE square. So this way you have proved your answer. See question number 14. The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D says that DB equal to, this DB is 3 times of CD. So here it's very important information that DB equal to 3 CD. I can write that DB upon CD as
3 upon 1 means 3 ratio 1. So it means I can say that CD is 1/4 of BC and DB is also 1/3 of BC. So that the relation that we can obtain here, we'll use that in proving that result. So first we'll write given. So given it's clearly visible that AD is perpendicular to BC and DB is equal to 3 times CD. So to show जो करना है वो आपको करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो फर्स्ट यू सी कि आपको AB स्क्वायर चाहिए, तो AB स्क्वायर का मतलब है आपको राइट एंगल ट्राइंगल चूज़ करना पड़ेगा जिस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका AB एक वन साइड हो. तो आई कैन सी दिस क्लियरली दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ADB because angle D is 90 degrees, so you will get AB. Similarly, you have to use ACD also because D is 90 degree this side also. So AC square will obtain when you use Pythagoras theorem in this triangle. So somewhere you are getting to know like you have to apply Pythagoras theorem in both the triangles, and after that you have to see how the answer will be derived. So we write solution. The solution is, we can think of how to start. We'll take in triangle ADB angle D equal to 90 degree. So using Pythagoras theorem, you can write the result that AB square is equal to AD square plus DB square. Now next thing that you have to observe कि आपको आंसर में AD square नहीं चाहिए, बिकॉज यू कैन सी AD स्क्वायर आपको कहीं भी नहीं चाहिए. इसका मतलब आपको AD को रिप्लेस करना पड़ेगा. अब AD को कैसे रिप्लेस करेंगे? सो वी कैन सी इन ट्राइंगल. अब हमें वही ट्राइंगल लेना पड़ेगा ACD, जिसमें D आपको पता है कि 90 डिग्री है. तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यू कैन राइट दैट एज माइनस CD स्क्वायर एज AD स्क्वायर. So this is mark this as 2, mark this as 1. So from you write from 1 using 2. So what you are getting now that AB square is equal to AD की जगह आप रखेंगे AC square minus CD square and that is your DB square. So now you have reached to this point. अब आपको चेक करना है कि आंसर में क्या चाहिए और आंसर में क्या नहीं चाहिए. देखिए, ना तो आपको आंसर में CD चाहिए, ना ही आपको आंसर में DB चाहिए. तो इसका मतलब आपको CD और DB को रिप्लेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं BC से. और ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है कि DB और CD में क्या रिलेशन है, ये पूरा BC से किस तरह से रिलेट करते हैं. सो इस रेशो की हेल्प से आप एक बात समझ सकते हैं कि आप DB को पूरी, अगर हम बात करें BC के लिए, तो दिस इज सम ऑफ दिस रेशो इज 4. सो यू कैन राइट 3/4 ऑफ BC एंड CD को आप लिख सकते हो दिस इज 1/4 ऑफ BC. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेशो दैट यू हैव टू यूज. सो अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हेयर and then see what you get, that AC square, let it be AC square. CD you can write this 1/4 BC whole square, and DB you can write this as 3/4 BC whole square. Now simply just to solve this, AC square this is 1/16, BC square this is 9/16, BC square, and this is your AB square, this is your AB square. So simplify here. So this is AC square. Within these terms you simplify. So you may write this as also 9/16 BC square. 9/16 is the LCM of these two terms, minus 1, or you can write say BC square. So you are getting AC square plus 8 BC square upon 16. This is AB square. So 8 1 जा 8, 8 2 जा 16.
अब आप 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए सारी तरफ, इधर भी एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज योर ए बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर एंड यू हैव proved this result. Now we will discuss question number 15. This is the most important question of this exercise and it was asked in CBSE many times. So please take care of this question and do it very well. Now again we'll use the concept of ratio. In this it's given that BD equal to 1/3 of BC. So we can write this here that BD is equal to 1/3 of BC. So you can see that if BC is the complete one and this is an equilateral triangle, so this also you know that BM equal to MC equal to half of BC, because median or altitude in equilateral triangle are the same. So we start from here that what is given to you, given that AB equal to BC equal to CA, बिकॉज ABC अगर इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। और आपको ये भी गिवन है कि जो BD है वो 1/3 ऑफ BC है, और आपको गिवन इसमें AM इज़ ऑल्टीट्यूड भी है, ये भी आपको गिवन है, AM इज़ परपेंडिकुलर टू BC ये भी आपको गिवन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। टू शो जो करना है वो शो में देखते हैं। टू शो में करना है आपको 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमने इसमें की है। वो कंस्ट्रक्शन है कि आपने जॉइन किया है, जॉइन A टू D। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। So I'm just giving you the idea how you will go about it. So see first आपको AD स्क्वायर चाहिए। AD स्क्वायर आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AD स्क्वायर आ रहा है। तो ADM ही एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका AD आ रहा है। तो आपको जो स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन, वो स्टार्ट करना पड़ेगा ADM ट्राइंगल से, जिसमें M 90 डिग्री लेकर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और उसके बाद फिर आपको सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। एंड देखते हैं फिर वो क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ADM में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। तो ये आने के बाद अब आपको सोचना है कि कैसे आप AM को हटाएं, क्योंकि ना तो आपको आंसर में AM चाहिए और ना ही आपको आंसर में DM चाहिए। बट हाँ, ये आपको पता है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है। तो या तो आप क्या काम करें कि AD तो आ गया, इस सब को आप BC की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर, तो कन्वर्ट कर दो, क्योंकि BC को आप लिख सकते हो अल्टीमेटली AB। तो हम BC को कन्वर्ट करेंगे तो AB आ जाएगा। तो किसी में एक में हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो AD को फ़िलहाल हम AD ही छोड़ देते हैं। AM स्क्वायर आप देखोगे कि AM स्क्वायर का रिलेशन अगर हम निकालें, किसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा ट्राइंगल, उसमें पूरा ABM में भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ थोड़ी साइड में लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABM, M आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AB स्क्वायर जो आएगा इक्वल टू आएगा आपके पास AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। सो यहाँ से हम AM स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वो आएगी आपके पास AB स्क्वायर, एंड इसको लिख सकते हैं BM मतलब माइनस BM स्क्वायर कर सकते हो। फिलहाल DM स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, दिस इज़ DM स्क्वायर। अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको सब कुछ BC में कन्वर्ट कर देते हैं। जो जितना भी आपको राइट हैंड साइड में देख रहा है सब कुछ अगर ये BC के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो AB को तो आप पहले ही लिख सकते हो BC, क्योंकि AB और BC आपस में इक्वल हैं। बात रही है BM की। BM के बारे में मैंने आपको बताया था, BM इज़ हाफ ऑफ BC, सो यू राइट हाफ ऑफ BC एंड राइट होल स्क्वायर। ना DM के बारे में आपको देखना है कि DM कैसे लिखते हैं। DM को अगर फिगर में ध्यान से देखो तो DM जो है वो एक्चुअली आपका BM
माइनस बी डी है। तो आपने जो डी एम को रिप्लेस किया वो डी एम को बी एम माइनस बी डी से रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया आपको रीज़न अभी समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ 1/4 बी सी स्क्वायर, इसको तो इतना ही कर देते हैं। आगे बी एम देखते हैं। बी एम आपको पता है कि बी एम बी सी की टर्म्स में अगर हम कहें तो दिस इज़ हाफ ऑफ बी सी है। दूसरा अगर बी डी की बात करें तो बी डी को भी आपको गिवन है कि दिस इज़ 1/3 ऑफ बी सी है, तो आपने इसको भी 1/3 बी सी एंड इसको होल स्क्वायर, इसको आपने चेंज कर दिया। तो अब आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब राइट हैंड साइड में सब जगह आपके पास बी सी है। सो राइट बी सी दिस इज़ 1/4 बी सी स्क्वायर। इसमें अगर आप ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा आपका 6, तो 6 लेने से ये हो जाएगा 3 बी सी एंड ये हो जाएगा 2 बी सी एंड दिस इज़ होल स्क्वायर। सो राइट दिस बी सी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर, and when you simplify this will become bc square by 36। एंड आप AD से स्टार्ट किया था तो AD स्क्वायर साथ साथ चल ही रहा है। तो इन सब में अगर एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम आपके पास आ गया 36, तो इसको लिखिए आप 36 BC स्क्वायर, इसको लिखिए 9 BC स्क्वायर एंड दिस इज़ प्लस BC स्क्वायर। तो 36 और ये क्या हो गया 37 में से आप अगर 37 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 37 में से 9 को 28 आपका आएगा। 37 माइनस 9 कर रहे हैं तो 28 BC स्क्वायर अपॉन 36 आ गया। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप 4 से काट सकते हैं, 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36। तो अल्टीमेटली AD स्क्वायर जो आप लेकर आ गए हो वो लेकर आ गए हो 7 BC स्क्वायर अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेट्स सी क्या आता है आपके पास। नाउ यू आर गेटिंग 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 BC स्क्वायर। और ये तो आपको पहले से मैंने क्लियर कर दिया था कि BC को आप AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और रीज़न आप दे सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ये आपको गिवन है। तो इसके साथ आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। बहुत इजी है अगर आप केवल एक ही चीज़ पर फोकस करें कि हर एक टर्म को आपको BC की टर्म में कन्वर्ट कर लें और BC से फिर इक्वल टू उसको लास्ट में AB कर दें। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। ये आपको जो ABC ट्राइंगल दिख रहा है दिस इज़ योर इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको प्रूफ जो करना है वो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब कोई भी एक वन साइड ले लेते हैं AB, 3 टाइम्स AB स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, मतलब 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। तो ये हमें सबसे पहले हम स्टार्ट वैसे ही करते हैं गिवन से। गिवन जो आपको है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, सबसे पहले ये गिवन है, और आपको ये भी गिवन है कि AD जो है परपेंडिकुलर टू BC है। टू शो करना है कि आपको 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर या BC कुछ भी कह लीजिए 4 टाइम्स, दिस इज़ 4 टाइम्स, और आई एम जस्ट राइटिंग हियर अगेन 4 टाइम्स ऑफ ऑल्टीट्यूड मीन्स AD स्क्वायर। तो ये आपको शो करना है। अब कैसे शो करेंगे ज़रा सोचना है आपको कि कैसे स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहले तो ये आइडिया आपको बेसिकली ये आइडिया लगना चाहिए कि आपको AB स्क्वायर चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको राइट एंगल ट्राइंगल ABD को लेना ही पड़ेगा। तो और एक चीज़ और भी है कि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ऑल्टीट्यूड मीडियन भी होता है, तो आप इसको लिख सकते हो BD इक्वल टू DC आप यूज़ कर सकते हो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन गेट द रिज़ल्ट कि AB स्क्वायर जो आएगा वो इक्वल टू आएगा आपका AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो आंसर में हमें AD चाहिए, हमें आंसर में AB चाहिए, और लेकिन हमें आंसर में BD नहीं चाहिए। तो BD को हम रिप्लेस करते हैं AD स्क्वायर। आप BD को लिख सकते हो हाफ ऑफ BC, दिस इज़ होल स्क्वायर एंड दिस इज़ AB स्क्वायर। इसके बाद आपको इस BC को भी चेंज कर दो, आप इसको लिख दो इसकी जगह AB कर दो,
क्यों ए बी कर दो, क्योंकि आपको ये गिवन और आंसर केवल पे आपको ए बी और ए डी के टर्म्स में ही चाहिए। तो बी सी इक्वल्स टू ए बी, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी। तो यहाँ से स्टार्ट करते, दिस इज़ ए बी स्क्वायर हो गया, तो ए बी के टर्म्स इधर लेकर आ जाओ। ए बी स्क्वायर ये 1/4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। दिस इज़ ए डी स्क्वायर, यहीं छोड़ दो। यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो दिस इज़ 4, दिस इज़ ए बी स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 ए बी में से एक ए बी जाएगा, 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अगर लास्ट में जो आपको प्रूव करना था वो आपने उसको प्रूव कर दिया। सो यू राइट दिस एज प्रूव्ड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक एक सब्सक्राइबर को करवाइए इससे सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।